Hello children, welcome to the Digi classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara. I am Amit Toshniwal. This video is for class 11th. Subject is account, chapter number 2 and part 2. Students, today we shall learn basic principles of accounting. On your screen you are seeing basic principles. Basic means without which the work of accounting is not possible. हम नहीं कर सकते. So these are the helpful guidelines. And these principles are not made by law or they are not written in any legal form. All these principles formed, formulated and made through the business experiences, practices and needs. Normally these principles are worldwide, not universally, worldwide accepted. But at different places, when in different countries, and when the size of organization is differ, then these principles keep on changing, बदलते रहते हैं. ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम लगाए जाते हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल यही है जिनके बिना अकाउंटिंग का काम नहीं हो सकता. तो पहला प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी. ड्यूअलिटी मतलब टू. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट every business transaction affects at least two accounts. It means if one account receives something, then some other account is giving it. So in this way you can say a transaction affects two accounts, and on the basis of this principle the same amount is entered on the debit of one account and on the credit of other account. So this is the base of basic accounting equation, that is assets is equal to liabilities plus capital, and therefore balance sheet of a firm or organization always equal both sides. Asset and liability sides are equal because transactions are written in dual form, in duality form. Okay. Second principle is principle of verifiability and objectivity of evidence. बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे के सारे वेरीफाइड होना चाहिए. वेरीफाइड होने के साथ साथ उनका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी उनको हम एविडेंस यानी प्रूफ के तौर पर प्रस्तुत कर सकेंगे, है ना. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी वेरीफिएबल फ्रॉम द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स. तो अवेलेबल डॉक्यूमेंट मीन्स वाउचर्स. सपोज परचेज इज डन, देन कैश रिसीट्स, इनवॉइस एंड डिलीवरी चालान आर कंसीडर्ड as primary vouchers which verify and justify that purchase is done. माल खरीदा गया है, उसकी जानकारी कैसे लगेगी? वाउचर के थ्रू. तभी तो वेरीफाइड होगा कि हाँ माल खरीदा गया, नहीं तो कैसे पता चलेगा? थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. According to this principle of accounting, assets must be recorded in the books of accounts at their cost of acquisition
यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज। जितने में खरीदी गई है उतनी ही कॉस्ट उसमें आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, या मार्केट प्राइस नहीं आना चाहिए, उसमें परचेज प्राइस उसकी होना चाहिए। तो अब परचेज प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होगा? द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ और फर्निश्ड गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस and other expense which are done to make asset valuable and usable. So it means always cost of asset is written in the books. This principle says. Now on your screen you are seeing fourth one, principle of revenue recognition. Revenue means income, or you can say inflow of cash. Any business concern will consider its revenue only and only from those activities which are done or which are made by selling and purchasing of goods and services. Other revenue incomes cannot be treated as profit. To find out gross profit, you need to find the cost of goods sold and cost of proceedings. Proceedings means sales. So that cost only will be considered as revenue, and moreover for a particular financial year. तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर का होता है, 1 ईयर के लिए अपन इसको कंसीडर करते हैं। इफ एनी रेवेन्यू इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, सो दैट विल बी कॉल्ड एन unexpired expense. Which expense? Unexpired, and that will be carried forward to the next year. If it is related of past year, then it will not be shown in the current year's financial statements. Okay. Fifth is principle of matching. Principle of matching means every debit has its corresponding credit. This concept is very important for ascertaining the profit of business for an accounting period. It means actual revenues and actual incomes, actual expenditures or expenses are written. So we have to neglect outstanding ones and prepaid ones. Yes, accrued income will be considered because it is of the same year. ये उसी साल की होती हैं accrued ones, तो वो लिखी जाएंगी, है ना। आउटस्टैंडिंग जो होगा वो भी उसी साल का होगा, that will be considered, but prepaid ones or unearned will be neglected. Principle of full disclosure. Full disclosure means all those customs and conventions according to which all the facts and informations are presented clearly in accounting book, so that all the concerned parties know of the real business situation without any ambiguity. Ambiguity means whether it is true or false. They should not be under perplexion. उनको ये नहीं होना चाहिए कि ये सही है कि गलत है, तो फुल डिस्क्लोजर रहना चाहिए। तो कंसर्न पार्टीज कौन कौन हो जाते हैं? कस्टमर्स सबसे पहले, इन्वेस्टर्स दूसरे नंबर पर, बैंकर्स, सप्लायर्स, है ना। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो उनके सामने बिजनेस पोजीशन का, बिजनेस सिचुएशन का फुल डिस्क्लोज़र होना चाहिए। अब वो डिस्क्लोज़र अपन कैसे कर सकते हैं? टू डिस्क्लोज
all that business need to make final accounts in a certain format and giving all necessary informations and figures in a very clear and accurate form. And if there is any liability which is unrecorded or not shown, it must be shown, should not keep it as a secret. उसको secret के form में नहीं रखना चाहिए, ठीक है. Now you see on your screen you are seeing accounting mechanism और accounting system. तो दो प्रकार के होते हैं ये. पहला होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम. तो सिंगल एंट्री का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें एक ही एंट्री होती है, या तो डेबिट या क्रेडिट, दोनों नहीं होते. और डबल एंट्री सिस्टम में दोनों होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है. तो डबल एंट्री सिस्टम को दो तरीके से लिखा जा सकेगा, इंग्लिश सिस्टम और महाजनी सिस्टम, जिसको इंडियन सिस्टम कहा जाता है. सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा? Two aspects of all the transactions are not recorded. All personal accounts are opened, but impersonal accounts are not opened. Impersonal कौन से होते हैं? जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, ये नहीं खोले जाते इसमें. And it does not provide us complete information. ये incomplete records कहलाते हैं. तो ये साइंटिफिक भी नहीं है. प्राइमरी कौन सी बुक रख लेते हैं बिजनेसमैन? पर्सनल अकाउंट्स के लिए और कैश बुक के लिए रख सकते हैं बस. फिर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? द ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम इज दैट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी चेक्ड थ्रू ट्रायल बैलेंस बिकॉज लेजर इज नॉट फॉर्म्ड इन अ प्रॉपर वे. मोर ओवर, बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. हाँ, वी कैन मेक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर दिस सिस्टम. वी कैन मेक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बट बैलेंस शीट कैन नॉट बी मेड. अब जब एक ही जगह पर एंट्री हुई है, उसकी सिंगल एंट्री हुई है, तो तीन चीज़ें और हो जाएंगी. कौन कौन सी? फर्स्ट, that will be very difficult to find out errors and rectification of errors. That will be very difficult. It will not be possible. It will not be possible to find out. Yes. So इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एरर्स को पता करना मुश्किल हो जाता है, उनका रेक्टिफिकेशन मुश्किल होता है. एंड दीज आर इनकम्प्लीट एंड इन साइंटिफिक रिकॉर्ड्स. दैट इज़ वाई दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोर्ट और द गवर्नमेंट. इनको अप्रूवल के तौर पे या एविडेंस के तौर पे हम प्रस्तुत नहीं कर सकते. हाँ, इसका एक ही फ़ायदा हो सकता है, it saves labor, time and no skilled person is required to do work. Okay? अब इतने सारे ड्रॉबैक्स थे इसमें, इसलिए अब अपनी स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रहा होगा डबल एंट्री सिस्टम. तो जब किसी चीज़ में ड्रॉबैक थी, किसी सिस्टम में ड्रॉबैक है, तो फिर कुछ नया तो करना ही है. डबल एंट्री सिस्टम जो अब एग्जिस्टेंस में आया, ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए. लगभग सारे बिजनेस हाउसेस इस सिस्टम को यूज़ करते हैं. अब इसमें क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट टाइप्स होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये सारे के सारे अकाउंट्स इसमें अपन ओपन कर सकते हैं. और सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो 2 अकाउंट्स में इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से एक अकाउंट जो होगा दैट विल बी रिसीवर एंड द अदर अकाउंट विल बी गिवर. So receiver will be debited and giver will be credited. Okay, so history is given on your screen, so you will read out its history. There is nothing to explain in this. कैसे एग्जिस्टेंस में आया और कौन लेकर आया उसके बारे में बताया गया है इसमें, तो वो आप इसको पढ़ेंगे.
नाउ यू सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब उसका नाम ही है डबल, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला आपको पॉइंट दिख रहा है, इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन ऑन 2 और मोर अकाउंट्स, कम से कम 2 पे तो आएगा, हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 2 अकाउंट्स पे आएगा, इसलिए जो डेबिट का टोटल है वो हमेशा क्रेडिट के टोटल के इक्वल रहेगा। ठीक है, फिर 2 साइड रहेंगी, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। लेजर में भी वही होगा, डेबिट क्रेडिट 2 साइड आपके पास रहेंगे। जर्नल में जब आप बनाएंगे 2 कॉलम आपको लेना पड़ेंगे जर्नल के लिए। थर्ड है ऑपोजिट साइड ऑफ अफेक्टेड अकाउंट्स, तो एंट्री इज मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ वन अफेक्टेड अकाउंट एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अदर अकाउंट। यदि किसी एक में डेबिट में हो रही है तो किसी दूसरे वाला अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा, दोनों डेबिट नहीं हो सकते। यदि 2 डेबिट हो रहे हैं तो नेचुरली फिर कोई थर्ड अकाउंट होगा जिसमें उन दोनों का सम लिखा जाएगा। तो कम से कम 2 में होना, यदि 2 है तो 2 में से एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। फोर्थ है ड्यूअल इफेक्ट। ड्यूअल मतलब 2 जगह, यानी कि हर एक डेबिट के लिए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट हमेशा ही रहेगा, जो कि जान है इसकी, सोल है। फिर इसमें फिफ्थ वाला पॉइंट है डेफिनेट अकाउंटिंग रूल्स। इसमें जो डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स रहते हैं, प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो नॉर्म्स सारे के सारे इसमें फॉलो किए जाते हैं। लीगल वैलिडिटी है क्योंकि ये साइंटिफिक है, इसलिए इसको जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो उसमें मान्य नहीं करती थी, आईटी डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, कोर्ट एंड एनी अदर जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर ये लीगल होता है। इसमें हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं आफ्टर मेकिंग लेजर, आफ्टर पोस्टिंग ऑल द एंट्रीज इन लेजर you can make trial balance and can check arithmetical accuracy, get up to some extent, not fully, वो भी कुछ हद तक, लेकिन फिर भी पॉसिबल तो है। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन को ये फॉलो करता है। फिर इसके नीचे आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वही इसके प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है इफेक्ट ऑन 2 अकाउंट्स, जो कि आप देख रहे हैं पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। दूसरा रिकॉर्डिंग इन 2 अकाउंट, जब 2 पे इफेक्ट आएगा तो फिर नेचुरली 2 अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। 2 साइड रहती है उसमें, ये आपको इसमें अपन ने देखा था। सेकंड पॉइंट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसमें लिखा हुआ 2 साइड्स पे ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाएं अपन इसके बाद 4th नंबर पे, तो एंट्री इन ऑपोजिट साइड, ये भी आपके पास इसमें आप देख चुके थे। ठीक है, so this is the end of your lesson number 2.